Hello friend, today we are going to discuss about stereoisomerism in complexes. Last lecture we have already studied about the structural type of isomerism. There are again four type of structural isomerism: linkage isomer, coordination isomer, ionization isomer and hydrated isomer. Now we are going to discuss about the stereoisomerism in complexes. So isomerism in complexes. So stereoisomerism are of again two types. First type is of geometrical isomerism and second is optical isomerism. So initially we have to discuss about geometrical isomerism in complexes. Okay, so geometrical isomer, there is a different arrangement around the central atom or central metal ion. It is called as geometrical isomerism. So let's see the geometrical isomerism. Actually there are different types of complexes. Suppose M is the central metal ion and A is the unidentate ligand. Unidentate means single atom, single donor atom. Suppose Ma4 is the complex. In this complex, M is the central metal ion and A is the unidentate ligand. Okay, this type we have to discuss about the geometrical isomerism. So let's see the geometrical isomerism in four coordinated complexes. Geometrical isomer. What is meant by geometrical isomer? These are the isomer having the same molecular formula but different arrangement of ligand around the central metal ion. Different arrangement of ligand around the central metal ion. It is called as geometrical isomerism. Okay. So what is meant by geometrical? Actually there are two types of isomer. First is cis isomer. Cis means adjacent to each other, and second trans. Trans means opposite to each other. Cis isomer and trans isomer are the example of geometrical isomerism. Let's see. Suppose there is a cobalt amine and Cl or PT. This one of the complex and PT NH3 and NH3 Cl. यहाँ पे देखो क्या है, NH3 and NH3 both are adjacent to each other. Chlorine and chlorine both are same ligand. Both ligand are adjacent to each other. देखो यहाँ पे सेम लिगेंड एडजेसेंट है, यहाँ पे भी सेम लिगेंड एडजेसेंट है. जब सेम लिगेंड एडजेसेंट रहते हैं उसे बोलते हैं सीस आइसोमर. कौन सा आइसोमर है? सीस आइसोमर. यहाँ पे देखो अमोनिया और ये दूसरा अमोनिया क्या है? अमोनिया एंड अमोनिया क्या हो गया? अपोजिट हो गया. ये अपोजिट पोजीशन है. यहाँ पे अगर रहती थी एडजेसेंट, यहाँ पे एडजेसेंट, मगर NH3 के अपोजिट क्या हो गया? NH3. Cl के अपोजिट क्या हो गया? Cl. जहाँ पे अपोजिट सेम लिगेंड अगर अपोजिट साइड में आ जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर. ओके, सो बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर. बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज सीस आइसोमर एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ट्रांस आइसोमर. तो सबसे पहले हम देखेंगे टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री रही तो क्या होता है. ये एक एग्जांपल बताया मैंने, सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सबसे पहले क्या देखेंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पता हुआ है सीस एंड ट्रांस टाइप के. तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दिखा था. सपोज Na CO ये एक कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनिल निकेल. ये कॉम्प्लेक्स है. ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ओके, we have, if we get the different arrangement of ligand around the central metal ion, it is the geometrical isomer of each other.
देखो यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड है, यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड है, यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड है, यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये कार्बोनिल इसके अटैच है, ये कार्बोनिल इसके अटैच है, ये कार्बोनिल इसके अटैच है, ये कार्बोनिल इसके एडजेसेंट। ऑल लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इन टेट्राहेड्रल complexes, in tetrahedral complexes all ligands are, देखो ये कार्बोनिल इसके एडजेसेंट में है, ये कार्बोनिल इसके, ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल के एडजेसेंट है, ये ऐसे है, देखो ये कैसे है, ऐसे है, ऐसे। दिस इज नॉट अपोजिट, ऐसे अपोजिट नहीं है, ये ऐसे है, ये CO और ये CO, ये CO और ये CO भी ऐसे है, इसलिए उसको अपोजिट नहीं बोला जाता। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई अपोजिट लिगेंड ही नहीं, तो वहां पे ट्रांसपोजिशन आ सकती है क्या, नहीं। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑल पोजीशंस आर सीज टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर, सो देयर इज नो ट्रांस आइसोमर, हेंस देयर आर नो ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर है क्या, नहीं है, यहाँ पे ट्रांस आइसोमर नहीं, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। हेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल complexes are not possible, ओके। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी सीस एंड ट्रांस टाइप के आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ये सबसे पहला कॉम्प्लेक्स था अपना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसमें सीस और ट्रांस पॉसिबल नहीं। एक एग्जांपल है NaCO पर, देयर इज नो ट्रांसपोजिशन, ऑल आर सीस टू ईच अदर, ऑल कॉम्प्लेक्स इन ऑल around this nickel all carbonyl are adjacent to each other, there is no series, there is no transposition in tetrahedral complexes, okay, so there is no geometrical isomerism in tetrahedral complexes, okay। अभी देखेंगे दूसरा टाइप, geometrical isomerism in square planar। square planar ज्योमेट्री आपको पता है। अभी सेकंड है अपना square planar ज्योमेट्री। square planar कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल क्या करना है अपने को, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। सबसे पहले देखेंगे MA4, क्या देखेंगे, MA4, यम यानी सेंट्रल मेटल लाइन, जैसे कि यम यानी सेंट्रल मेटल लाइन, और स्क्वायर प्लानर कैसा रहता है, ऐसा रहते हैं, ओके। ये ऑल लिगेंड्स आर सेम, ये के एडजेसेंट में ये है, ये के एडजेसेंट में अपोजिट है, कोई भी कैसा भी तुम एडजस्टमेंट कर लो, यहाँ पे सेम एडजेसेंट में सेम स्ट्रक्चर ही आएगा, मींस देयर इज नो डिफरेंट आइसोमर पॉसिबल, मींस MA4 नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों आइसोमर ज्योमेट्रिकल पता नहीं, क्योंकि ये सब लिगेंड क्या है, एक ही टाइप के। एग्जांपल है NiCN/4 2-, ये कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं है, MA4 टाइप के कॉम्प्लेक्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑल लिगेंड्स आर सेम। आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 लिगेंड तो भी डिफरेंट चाहिए। उसके बाद देखेंगे MA3B, देखो यम हो गया सेंट्रल मेटल आयन, बाकी के क्या होगा, ये यार यूनिडेंटेड लिगेंड, सिंगल एटम Cl जैसे, और एक आता Br आ गया, जैसे कि मैंने बोला B, यही बोलूं CN/3 Br आ गया, देखो, ओके। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में देखो A एडजेसेंट टू ईच अदर, ये एडजेसेंट टू ईच अदर, A एंड B अपोजिट टू ईच अदर। अगर मैंने A की जगह B ले लिया, देखो A की जगह क्या करता मैं, B लेता, B यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ये देंगे, कोई भी अरेंजमेंट कर लो तो भी आपको A के बाजू में B ही दिखेगा, यानी नई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं। ये भी आइसोमर दिखाएगा नहीं, जो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या इसमें भी नहीं, स्क्वायर प्लानर दिख रहे हैं। तीसरा स्ट्रक्चर लेंगे MA2B2, क्या है यम यानी सेंट्रल मेटल लाइन, यम A2 दो ये है, 2 B है, देखो अभी 2 ये है, 2 B है, यम A2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स,
क्या हो रहा है देखो, इसका ये को क्या कर लेता मैं, यहाँ भी लेता, यहाँ पे कर लेता और बी यहाँ पे लाता। देखो दूसरा स्ट्रक्चर निकाल के देखो, ए की जगह क्या आ गया, बी आ गया, ये बी की जगह चला गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे बी। देखो पहला कॉम्प्लेक्स में क्या दिख रहा है, ये एडजेसेंट टू ईच अदर, बी एडजेसेंट टू ईच अदर, इसे बोलते हैं सीज आइसोमर, बराबर है। यहाँ पे देखो बी एंड बी अपोजिट, ए एंड ए अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट है यानी इसे बोल सकते हैं ट्रांस। यानी M2B2 टाइप में क्या दिखा आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखे। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक सीज है और दूसरा ट्रांस है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है, दो। देखा इसका एग्जांपल आपको पहले दिया था, PtCl2NH3/2। ओके, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया मैंने, M2B2, आपको क्या मिला, आपको सीज एंड ट्रांस आइसोमर मिला, यानी M2B2 में सीज एंड ट्रांस आइसोमर है। उसके बाद देखेंगे A2BC टाइप, A2BC टाइप देखो, मेटल एक बी एक सी। देखो यहाँ पे ये एडजस्ट है, यहाँ पे क्या करता मैं, ये यहाँ पे लाता, सी यहाँ पे लाता, देखो यम ये वहाँ पे रह गया, सी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये क्या था, एडजेसेंट था यानी सीज था, इसे यहाँ पे ये एंड ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो ये सीज है और ये ट्रांस है, इसमें भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, समझे क्या। और एक लेंगे MABCD, चारों की चारों क्या है, लिगेंड डिफरेंट है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेता मैं, NiCN/2ClBr, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका एग्जांपल कर सकते हैं। MABCD, MABCD, यहाँ पे क्या करा मैंने, ए एंड बी सीज है और ए एंड सी सीज है, ट्रांस है, ए एंड सी ट्रांस है। उसके बाद क्या करो, ये बी यहाँ पे लाओ, सी यहाँ पे लाओ, ए एंड बी ट्रांस कर लो, सी एंड डी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, ये डी इधर लाओ, ये बी इधर लाओ, यम ये जगह पे रखा, बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। देखो पहले इसमें क्या था, ये सी ट्रांस, दूसरे इसमें था ये बी ट्रांस, तीसरे इसमें था ये डी ट्रांस। इसके बाद अगर करने जाओगे तो सेम स्ट्रक्चर आएगा, यानी कम से कम कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट आती है, 3 आती है। तो MABCD टाइप यूज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, समझे। तो ये था आपके, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मींस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले देखा मैंने MA4, इसके बाद देखा MA3B, उसके बाद देखा MA2B2, उसके बाद देखा MA2BC, उसके बाद देखा MABCD। MA4 चारों लिगेंड सेम है, इसलिए उसमें CG पोजीशन है, ट्रांस आदि क्या नहीं, ये नहीं दिखाएगा। MA4 नहीं दिखाएगा। MA3B 3 पोजीशन तो सेम ही है, कोई भी अरेंजमेंट कर लो सेम ही आएगी, ये भी नहीं दिखाता। MA2B2 2 दिखाता, MA2BC 2 दिखाता, MABCD 3 दिखाता। तो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये सब थे अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।